Okay, so this is our API which we are working on so far, right? Now I'm not going to be adding any new endpoints to it. Rather, we'll try to do something else. I mean, I would like to add a new endpoint, but the concept here is that what you want is, let's say you have another API and you want to read the data from that API. In a sense, your API, your employee API is going to be calling that other API. Okay, so how will we achieve that? That means if your employee API is there and then you have, let's say, any API, let's say a pet store API, and that also has some endpoints defined, and you want to call that API from this API, employee controller API, how will you do that is what we will try to see. So this is how we are trying to learn how two different components interact with each other, right? So it's not that only front end calls your backend API. Your backend API can also call another backend API, right? So we are trying to see this integration. So what we do in order to do, anyone has done this before? Anyone know how to do that? Anyone in the sense, I think Ashwin is the only one today. Ashwin, do you know how you do that? No, sir. No? Okay, fine. Okay, so we will use a object or a class called as REST template. Okay, so next REST template is a class which using which you can actually interact or hit another endpoint of another API and get that data and display it as a part of your API. So let's see how it looks like. So imagine we have an actual API. So this is an actual API called as Pet Store. This is actually an open API for sample for reference purposes. And this actually works. So if you go here and let's say if I say get here and I say try it out and select available, click on execute, it actually returns me the data. Okay, so this is a very famous reference API or Spring Boot Swagger API called as Pet Store. Okay, so this is what basically we will be using to demonstrate how you will call this endpoint, let's say from this from any endpoint appearing here. Okay, so how to achieve this is we'll go and come to a controller, and for this we will go and add a new endpoint. Okay, so we simply go here and I will create a new endpoint. I'll say, or other copy pasting, I simply say public void get my pets. Okay, and then I will do this and I will make this as a get mapping. Okay, and for the endpoint I'm simply, let's say, will say pet, and I will, let's say, write the status because I'm trying to write based on what I have here. So here if I see available, I click on execute, I get this endpoint which is v2 pet find by status, and then as a query parameter I have to pass status is equal to available, and then it will return me this information. Okay, the same thing I'm trying to do here. I'm saying pet status, and then here I will simply say path variable, which is actually this one is a path variable. Okay, and this is supposed to be a string, and I'll say this is status. And here I want to create another service. I don't want to use the same service. I will go and create another service. To create another service, I will go here, click on create a new class, and I will say employee pet service, something like that. Okay, and I will go here, tag it as service, and inside this I will go and create the class. I'll go to controller and I will say employee service dot get all pet info with the status as, and here I will pass the status. This will of course give me error, and I will actually
create this method. Oh, not here. I want to create this method in my pet service. I created this method here. Okay, now inside this method, I'm going to be writing the logic of getting the information from this other API. And for that, we are going to be using this REST template class. So what I will do is I will again go back here. Okay, and here I will create this class called as REST template. This comes with Spring Boot itself, so you don't have to add the library for it. It's already there. How it works is quite simple. You simply initialize it, create an object of it. Then you say REST template dot. Then you say get for entity. Here you mention what you really want to hit. So I'm saying I want to hit this URL. Okay, I want to hit this, and then what it would return, right? So it will return this series of information. Okay, in order to really mention what exactly and the exact schema of what is the value which is I'm going to be getting, I may have to define the whole object model for it. But I will not go into that detail at the moment. I will simply say I will be returning, or it will be returning an object. So I will say object dot class here, and that's it. Okay, now this simple statement will do very simple thing. It will just create the class, initialize the object, sorry, create the object, and then you will call this method called as get for entity. By the way, this has many methods available: get for entity, exchange, and all those things. To keep things simple, I'm just simply saying get for entity. Okay, and this will actually return something called as response entity. And this response entity object will have the body, right? So essentially what I'm doing is, if you remember in the very beginning, we were doing something called as curl command. We are calling this curl and we are hitting the endpoint, right? We were saying get, and then we were saying HTTP localhost. If you remember that, that's what we were doing to hit our API, correct? The same thing you see here also, the curl command to do this. If you want to hit an API, use curl command. Now when you use curl command, this usually means that you are using a command line interface. आपके machine पे जो भी local command line interface है, वहां से आप उसको hit कर रहे हो. That's what it means, right? लेकिन in this case, I'm not doing this from command line, right? In this case, I am using, or I'm trying to call the API, which is this API, from my Java code. मैं मेरे Java code से hit कर रहा हूँ इस API को, which is this one. This API is hosted on internet. It's not on my local. This is hosted on internet, and from internet, I'm trying to hit this API from my Java. From my Java code, मैं उसको hit कर रहा हूँ और वो उसकी values को I want to display, right? So मैं यहाँ curl command use नहीं कर सकता. But the reason I'm trying to compare this with curl is that the curl is what curl does is exactly what REST template is also doing. It just curl को आप command line पे use करते हो, REST template को आप Java में use करते हो. Okay, so it's exactly what it is. And then in the return part, I will simply return this. Oops, sorry. And to return this, I will convert this into a string. So I'm saying इसकी जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो भी वैल्यू देखो रेस्ट टेम्पलेट किया, रेस्ट टेम्पलेट, देन आई एम सेइंग रेस्ट टेम्पलेट डॉट गेट फॉर एंटिटी. यहाँ मैंने डाला कहाँ हिट करना है और क्या रिटर्न आएगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा. And that object which is being returned inside response.entity, I am simply saying response.entity.getBody. मतलब जो भी रिटर्न आया उसमें से बॉडी को फेच करो और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो and then return it. That is what I have done here, as simple as that. Okay, there are better ways to write this, but that we will see later. For now, let's see whether it is working. So I'll go back to my controller here.
Okay, by the way, status is also we would like to see, right? So if I go to my pet service, and here the status part is this one. So मैं इसको parameterize कर देता हूँ so that मैं जब status available भेजूँ तो it should bring me all the available pets. Okay, and then here I should have created another class here, another object, because this is employee service. और मैंने define किया है pet service में, right? So I need to create another object here, employee pet service, and I will auto wire it. Now this is auto wired, and the employee pet service के अंदर मेरे पास ये method है. That is what I am trying to write here. Okay, so I have wrote it here like this. Okay, so now I have a working endpoint, which once I hit, okay, it will go and create a REST template object, and then it will go and hit this URL, bring the value and return it back to me. That is what I'm trying to do. Let's see whether this works or not. Okay, so if I go here, I have another endpoint, pet status. यहाँ पे status पूछ रहा है. I will say sold, for example. Okay, for sold, it did not return anything. Let's say I say available. Okay, so what I'm getting here is every time I do something, it is not returning me anything. It's simply saying 200, but it's not saying anything else. Now, sometimes when you are developing, जब आप develop करते हो आपके code को, तो एक बार में सब नहीं चलता. Okay, you try to implement it in a right way, but when you run it doesn't work. So how do you know what's wrong, right? तो हम कैसे पता चलेगा कि क्या गलती हो रही है हमसे, right? So the thing is, when this situation happens, we need to know how to debug the program. हम अपने program को debug कैसे करें? That is also important for you to know. Okay, so let's see how. So अभी मैंने available डाला, और मेरे हिसाब से ये पूरा यहाँ पे आना चाहिए था. It should have come here, and यहाँ पे वो get mapping में इस method में जाना चाहिए था, and यहाँ REST template मैंने बनाया हुआ है, and it should have gone here, and it should have worked. Basically, that's what I feel. It still did not return anything. So my question is, it did return 200, but it never returned the body. So I want to see exactly क्या हो रहा है यहाँ पे. So for that, what I will do is I will do something called as put a debug point. Okay, so मैं यहाँ पे एक debug point लगाऊंगा. So what will happen is, जब भी कोड का पॉइंटर इस लाइन पे आएगा, तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा. जब वो रुक जाएगा, then I will have an opportunity to see the values कि क्या रिटर्न स्टेटमेंट आया है, क्यों नहीं चला होगा, क्या वैल्यूज हो सकती हैं. That is what I will do. Try to see what is wrong, to look closely what is wrong. So this is what I will do. I will stop this run, and then I will click on debug. So when you do this run, it will not stop here. But when you say debug and you have a breakpoint, and when line pointer comes here, then it stops. So if I click on this one, okay, the application is running. Why it did not stop here? Because अभी ये line execute ही नहीं हुई है, right? Execute कब होगी? जब मैं वापस यहाँ पे आऊँगा. Okay, when I come directly here and click on try it out and click on available, and click on execute. Okay, then यहाँ पे loading हो रहा है क्योंकि मैंने pointer लगाया हुआ है. यहाँ पे result आएगा नहीं. It will come here, and यहाँ पे pointer आके रुक गया. And at this point, it is telling me you can debug. It is telling me आप यहाँ पे debug करके check कर सकते हो कि क्या problem है. So now let's see. So if I see response entity object, this is a response entity object. I'm getting status as 200. मतलब इस object ने इस endpoint को hit किया, और उसको result भी मिल गया, right? Header body भी मिल गया उसको, right? Status 200 आया. I open the body. It is able to, हालांकि ये hash है, the exact object should come here inside. So all the objects are coming here.
This is a linked hash map basically, and the body is also is present. So point is result तो आ गया इस end point से, तो that means मेरा ये code तो चल रहा है, but ये return नहीं हुआ. Let's see why. If I go back here and I go here and see get body, okay, so this is if I convert this to a string. If I go here, see, मैं कैसे debug कर रहा हूँ, right? So I can actually manipulate and see the status of my objects here. मैं यहाँ पे click करके पूरा expression भी run कर सकता हूँ. So I can even do this. I'll say string dot value of पूरा run किया, और I can say string dot, मैं अपना पूरा कोड यहाँ पे रन टाइम पे लिख सकता हूँ to see the values. तो वो पूरा string representation मुझे करके दे रहा है वहाँ पे. ओके, so it's all coming here. I can click on view. So it's telling me कि पूरा वहाँ पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है. Where can that then the problem be? So I come here, can anyone tell me what is the problem? Anyone knows कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? Okay, it's very quite simple. Result is not coming because I'm not returning it, right? So I have to return it, and I have to return it as a string because this is giving me string, so I'm also returning the string. And now it should work. So I'll stop it. I'll run it again. So you see, this is how we debug to know कहाँ पे क्या problem है. अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे सोचना पड़ता क्या गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है. तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए, when you get it stuck and it's not working, try putting in points, different points and different methods. फिर वहां पे जब वो रुकेगा तो फिर अब you can see यहाँ क्या वैल्यू थी, ठीक है, ये मेथड सही चल रहा है. So this is how I concluded कि प्रॉब्लम इस मेथड में तो नहीं है. जब मैं यहाँ पे था, जब वो नहीं चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कहीं प्रॉब्लम इसमें तो नहीं है. सो मुझे पता चल गया इसमें तो नहीं है. देन I'll go one step ahead on the top. तो प्रॉब्लम इसका मतलब यहाँ पे है. And then I quickly able to locate क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न नहीं किया था. Okay, now this will work. If I click on execute, it has brought everything here. Now its body is also being returned. So this is the exact value what you get here once you run this, right? This is exact that value, but the only thing is I'm getting all this value via this API. So मेरा ये API कॉल कर रही है इस API को. कॉल कैसे कर रही है? ऐसे. एंड वहां से ये जो कमांड है, fetch store API की जो कमांड है, ये मुझे रिटर्न दे रही है इस API को, एंड ये API फिर वापस मुझे UI पे दिखा रही है. Okay, so this is how you call one API from another API. Okay, so this is just a very small example of it. Now it can get really complicated in the sense, हो सकता है आपका जो ऑब्जेक्ट मॉडल है जो आप अभी मैं यहाँ पे इसको एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ. इफ यू सी, आई एम रिटर्निंग दिस एज एन ऑब्जेक्ट, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस एंड दैट इज नॉट ऑल्सो द राइट प्रैक्टिस. सो जब भी हम कुछ रिटर्न करके हम उसको वापस लेते हैं, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू मैप इट विद एन ऑब्जेक्ट मॉडल. ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब इस टाइप का ऑब्जेक्ट मॉडल. दिस इज ऑल्सो एन सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल. सो मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसको रिटर्न करूँ तो मैं ऑब्जेक्ट मॉडल में उसको स्टोर करूँ. For now, I will not be demonstrating that, but idea is that you should always try to do such things. That is, क्योंकि ये pet store तो बहुत बड़ी API है, और हमें इसका अगर हम object model बनाने बैठेंगे तो it will take a lot of time. So we don't need to do it. Anyway, this is something which we'll do when we will actually work on our original project. जो हम करेंगे जब वहाँ पे तो of course हमें करना ही है, तो that we will learn there. But the idea still remains same. That is, REST template is what you will use. Now REST template is not the only library. REST template comes from Spring Framework, but we also have another API or another mechanism in Spring Framework called as web client. So instead of REST template, हम use कर सकते हैं web client. Okay, लेकिन अभी for now we cannot learn everything. So हम लोग एक चीज कर जिससे हो सकती है वो इसके लिए एक ही चीज सीखेंगे, which is REST template, which is also very famous, and you must know how REST template works. Okay, any questions so far?
कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अचीव कर रहे हैं। इंटेंट से कोड तो बहुत सिंपल है, कोड तो वही है जो हमने किया, कि 4 लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया, एंड पॉइंट ऐड किया, बाकी सब सेम है। आ, क्यों कर रहे हैं ये समझ में आया, और कैसे कर रहे हैं एग्जैक्टली, आर यू गाइस क्लियर और यू हैव एनी क्वेश्चंस? Clear. Clear, okay, fine. अब whatever we did, let's try to do it in a better way. Okay, इस कोड के साथ क्या प्रॉब्लम है? इस कोड के साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने सब हार्ड कोड किया हुआ है, something like this. This is not a right strategy. Okay, similarly, Spring framework में it's not always a good idea to create your objects using new keyword. because जब आप new keyword के through object create करते हो, then the scope of that object is limited to that specific class, और Spring framework उसको manage नहीं कर पाता. Okay, so what Spring framework is good at is managing your objects for you and making it available for you in all the different classes. उसी लिए हम लोग, आप you notice, we use something called as AutoWire. Okay, so all these things, auto wiring thing is actually available, is given to you by Spring Boot, and you can use this auto wired thing to inject. There's a word here called as inject. Actually इसका जो concept है उसे कहते हैं dependency injection. So I will send some link also later. I tried explaining this earlier, but I will send this again. But this is the concept behind this is called as IOC. It has many names. So IOC, dependency injection, and all this is achieved by using something called as auto-wired annotation. So Spring Boot provides you this annotation called as auto-wired, and in a very plain vanilla way of explaining this, ये करता ये है कि जब आप ये कर देते हो, then you don't have to do this, because जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करना है, राइट, किसी भी, सारा कोड आपका क्लास के अंदर है, क्लास को यूज करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। जब आप न्यू कीवर्ड यूज करते हो तो जो उसका स्कोप है ऑब्जेक्ट का, वो उस क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ न्यू कीवर्ड कर दिया, अब मैं इसको केवल इसी क्लास में यूज कर सकता हूँ, राइट। बट इफ यू डोंट डू दिस, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कहता है कि आप ये मत करो, जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है आप मुझे बताओ। Spring framework says you tell me what object you want and I will create it for you. I will create it for you, I will maintain it for you, I will make it available for you wherever you want it. तो या मैंने ऑटो वायर्ड यहाँ लिखा है, यही मैं कहीं और भी लिख दूंगा दूसरी क्लास में, तो वहां भी यही ऑब्जेक्ट का सेम इंस्टेंस अवेलेबल हो जाएगा, राइट। So I will make it available for you, and I will destroy it for you. If you don't need it, I will destroy it also. So you don't have to do anything with it. You just tell me कि क्या चाहिए. That is what I am doing here. When I say employee service, I say auto wire. This is how I tell. इस तरह से मैं Spring Boot framework को बताता हूँ कि मुझे ये ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्या क्या तुम मुझे दे सकते हो. That's what I am doing here. The same thing I think we will have to try doing here as well in this place. So we are saying REST template, new test template. I don't want to do that. I want to change this to something like this. So I want to say REST template, and I want to say auto wired. Okay, and I will remove this line. Fine. Now let's see. Can you hear me, guys? Yes, sir. Okay. Sorry, my headset had some trouble. Okay, fine. So, okay, I have done this. I have kept this at the top, and I have marked this as auto wired. Let's see whether this would work or not. So if I go and run it again, let's see what happens. Oops. So my application did not start. It's saying application failed to start. अब ये जब आप Spring Boot एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट, तो ये भी बहुत होगा आपके साथ, या फिर कुछ किया, चेंज किया और वो रन होना बंद हो गया, कुछ वो कह रहा है स्टार्ट नहीं कर पा रहे. लेकिन Spring Boot is good because it tells you why. Here it's telling you why. Field REST template in this required a bean of type this that could not be found. The injection point has the following annotation. Action. Consider defining a bean of type this in your configuration. Okay. और ऊपर भी ऐसे कुछ कह रहा है, यहाँ भी वही कह रहा है, क्रिएट नहीं कर पाया.
ओके, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप दिस, डिपेंडेंसी एनोटेशन दिस, जो यहाँ कह रहा है वही वहां कह रहा है. व्हाट इज द रीजन? द रीजन उसने यहाँ बताया, पर हो सकता है आपको जो कह रहा है वो समझ में ना आए. सो आई विल लेट मी ट्राई टू डिक्लटर इट फॉर, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फॉर यू. बीन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट. एनी ऑब्जेक्ट what Spring Boot which you want to which you want Spring Boot to manage is called as bean. जिसको आप ऑब्जेक्ट कहते हो वो उसको बीन की तरह लेता है. फॉर एग्जांपल आपका ये जो कंट्रोलर है, राइट, इसमें ये एक बीन है, उसके लिए स्प्रिंग बूट के लिए एक बीन है, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के लिए ये भी एक बीन है. एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वन बीन, ऐसा आप सब उसको लूजली समझ सकते हो. तो वो कह रहा है कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू इंजेक्ट दिस ऑब्जेक्ट which is uh, this one, when I was trying to inject this, the field rest template, this one, in this required a bean of type that could not be found. तो वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मुझे बनाना था, तुमने मुझे कहा ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन मुझे ये ऑब्जेक्ट की बीन नहीं मिली. दैट मीन्स स्प्रिंग बूट इज सेइंग आई कुडंट लोकेट दिस बीन फॉर इट. कोई मुझे इनिशियलाइजेशन क्लास इसकी मिली नहीं. फिर आप, लेकिन व्हाट यू विल आर्ग्यू राइट नाउ कि सर आप पहले कह रहे थे ये तो स्प्रिंग बूट खुद बना लेता है, आप कह रहे हो कि नहीं बना पाता, नहीं बना रहा है. सो दो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट. फॉर मेनी ऑफ दीज यूजफुल क्लासेस स्प्रिंग बूट क्रिएट्स इट, स्प्रिंग बूट उसको क्रिएट करता है आपके लिए ऑटोमेटिकली. बट कुछ ऐसी क्लासेस भी हैं जो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करता. दैट इज व्हाट यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ, and but Spring Boot gives you a way to define it. The reason is because sometimes वो बीन क्रिएट करते वक्त एक स्पेसिफिक सेटिंग्स भी देनी होती है. तो REST template is a such class where you can, while you create it, you can also provide some configuration to it. So Spring Boot कह रहा है कि देखो मैं नहीं बना के दे रहा हूँ आपको, आप खुद बना लो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लो, एंड देन इंजेक्ट इट टू मी. टेल मी कि दिस इज द बीन एंड देन आई विल यूज इट. ओके, सो यहाँ पे वो यही बात कंप्लेन कर रहा है. यहाँ वो कह रहा है कि उसको मिली नहीं. ये नहीं कह रहा है आप क्या करो, वो कह रहा है बाद में, पर वो कह रहा है कि मुझे अभी नहीं मिली ये बीन तो मैं नहीं बना सकता. एक्शन करना क्या है, कंसिडर डिफाइनिंग अ बीन ऑफ टाइप दिस इन योर कॉन्फ़िगरेशन. वो कह रहा है अपनी कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह का बीन डालो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ इज, आई विल ट्राई टू शो यू कि जब ऐसी सिचुएशंस आती है जहां आपको खुद के ऑब्जेक्ट्स बना के इंजेक्ट करने होते, खुद के ऑब्जेक्ट बना के उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है और उनका बीन बनाना होता है, तो कैसे करते हैं. ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल गो क्रिएट हियर अ जावा क्लास. उसका नाम मैं देता हूं फॉर एग्जांपल config employee or something. Then I will annotate this with a new type of config annotation जो आपने नहीं देखा होगा अभी तक. This is called as at the configuration. So you see, यहाँ मेरा Spring Boot एप्लीकेशन है, कंट्रोलर मैंने किया हुआ है कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर. यहाँ मैंने किया हुआ है सर्विस. यहाँ मैंने किया हुआ है, I think I should have done it as a repository. And if you go here to the controller, sorry, to the configuration, I am saying configuration. ये सारे Spring Boot के annotations हैं. Spring Boot कहता है आप जब annotation दोगे तो मुझे पता चलेगा कि ये क्या है, right? That's the reason I have to put these annotations. What Spring Boot is asking me to put on certain classes. जब भी मेरी config, जब भी मेरे इस टाइप के errors आएंगे, right? तो मुझे इस तरह की क्लास बनानी है, उसके ऊपर मुझे लिखना है @configuration. Fine. Then I will do something very simple. I'll say public void get rest template. Fine, quite simple. Here what I will do is I will mark it @bean. यही मुझे करने को कह रहा था, राइट? कंसिडर डिफाइनिंग अ बीन. सो आई एम डिफाइनिंग अ बीन ऑन टॉप ऑफ अ मेथड. नाउ यू विल आर्ग्यू कि ये तो बीन का मतलब तो आप कह रहे थे क्लास है और आप कह रहे थे ऑब्जेक्ट है, पर ये तो मैं मेथड बना रहा हूँ. व्हाट दिस इज डूइंग? Okay, so this method name has no meaning. What this method is going to be returning is what is important. So ये method क्या return कराना है? मैं चाहता हूँ कि ये method एक REST template का instance return करे. Okay, so I will just simply say new REST template, and that's it. So now let's revisit कि हमने क्या किया. What we did, we came here, हमने ये लिखा, स्प्रिंग बूट ने कंप्लेन की कि भाई मुझे इस टाइप का कोई क्लास मिला ही नहीं, आप खुद से बनाओ.
मैं आया, मैंने खुद से क्लास बनाई, उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके अंदर एक मेथड लिखा, मेथड के ऊपर लिख दिया @bean। तो अब स्प्रिंग बूट इसको पढ़ के ये समझेगा कि जब वो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा, कहेगा अच्छा एक क्लास है, उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, गुड, उसके अंदर कितने मेथड है, इतने मेथड है, उसके उन मेथड के ऊपर बीन लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ओके, सो दैट मीन्स उस मेथड को एग्जीक्यूट करो, उसके अंदर से ऑब्जेक्ट निकालो, और वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दो अपने स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में। सो जब अब मैं किसी भी क्लास में, आफ्टर आई डू दिस, किसी भी क्लास में मैं जाके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू दिस, इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो करके स्प्रिंग ने अपने पास रख लिया। ओके, नाउ यू वुड अगेन आर्ग्यू कि आप कह रहे थे पहले, यू आर सेइंग अर्लियर कि हमें न्यू कीवर्ड यूज नहीं करना है, सो व्हाई यू आर डूइंग इट हियर, व्हाट इज द एडवांटेज? सो फाइन, मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू कीवर्ड तो जावा में यूज करना ही पड़ेगा। डिफरेंस है, स्प्रिंग बूट इंटरनली वो कर लेता है, ठीक है, लेकिन अगर स्प्रिंग बूट खुद से नहीं कर रहा है तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए तो न्यू करना ही पड़ेगा उसको, आई डोंट हैव एनी वर्क अराउंड फॉर दैट। बट इसका एक एडवांटेज ये है कि वंस आई डू दिस, आई एम एबल टू यूज दिस ऑब्जेक्ट, द सेम ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। तो अब मुझे और कहीं क्लास में न्यू का नहीं करना पड़ेगा, मैंने केवल एक जगह न्यू कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, राइट, फाइन, नाउ आई डोंट हैव टू डू दिस एवरीवेयर, आई कैन, इफ आई हैव अनदर क्लास, मैं यही क्लास कॉपी करके कहीं और भी डाल सकता हूँ। I can do the same thing here and it will work. So I don't have to do new everywhere. Just one place and Spring will initialize it and that's it. Okay. So now let's see if this complains again. Let me see. So now it's not complaining. You see the error is solved. It is able to find it. And if I see my code works or not, if I click on execute again, it is still working. That means everything is wired in, properly working. ओके फाइन। सो ये एक बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग दिस इन अ वेरी वेरी सिंपल लेमन टर्म्स कि ये क्या कर रहे हैं हम। ओके, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि स्प्रिंग बूट खुद से नहीं कर पा रहा है। जब स्प्रिंग बूट कोई ऑब्जेक्ट खुद से नहीं क्रिएट करता है तो उसको हमें क्रिएट करना होता है, उसको क्रिएट करके उसको देना होता है। और वो क्रिएट करके उसको कैसे देते हैं, यूजिंग दिस, एक क्लास बनाओ, उसको कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके ऊपर एक मेथड लिखो, मेथड में रिटर्न करो, एंड उसके ऊपर बीन लिख दो, and you can have multiple beans directly placed here. Okay, so it's very simple. Now let's take this to another level. एक और concept जो हमने यहाँ miss किया, we have hard coded this value here. This is not a good approach. जो भी URLs होते हैं, पोर्ट होते हैं, ये सब हमें कोड में हार्ड कोड नहीं करने होते हैं, हमें कहाँ लिखना होता है, we should keep them in the configuration file. What if कल को ये चेंज हो गया URL, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है सर्वर चेंज हो गया, फिर हम क्या करेंगे, जो कि होता रहता है इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। डेव एनवायरमेंट में कुछ और होगा, टेस्ट एनवायरमेंट में कुछ और होगा, स्टेजिंग एनवायरमेंट में कुछ और होगा, यूएटी एनवायरमेंट में कुछ और होगा, फिर प्रोडक्शन में ये होगा। तो जो आप यूआरएल देख रहे हो प्रोडक्शन का यूआरएल है एक्चुअल, और जब आप इसको जब आप डेवलप कर रहे होंगे, आपकी दूसरी एपीआई डेवलप हो रही है, वो तो सेम यूआरएल नहीं होगा, यूआरएल चेंज होता है। तो यूआरएल आप इस तरह से कोड में हार्ड कोड नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। वेर यू शुड पुट इट, यू कैन पुट इट इन द एप्लीकेशन YAML, बट कहाँ? सो few of the settings here, key value pairs are defined, तो ये तो defined है, पर आप अपने भी चीजें यहाँ पे define कर सकते हो। For example, if I come here, I will say pet API, I'll say URL, okay? तो मैंने एक यहाँ पे नया सेगमेंट खुद का बनाया, pet API URL, और उसको मैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं यहाँ से कट करके आई विल जस्ट पुट इट हियर। देखो मैं पूरा कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एंड पॉइंट तो सेम रहते हैं, मोस्टली एंड पॉइंट चेंज नहीं होते। जो सर्वर का नेम है वो चेंज होता है, तो कोई भी यूआरएल होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ओके, वन पार्ट इज योर सर्वर नेम, सो ये सर्वर का नाम होता है। हमारे केस में सर्वर का नाम नॉर्मली क्या होता है, लोकल होस्ट और पोर्ट, ये दोनों मिला के सर्वर का नाम होता है। जैसे रूट बेस यूआरएल या रूट यूआरएल ऐसा कहते हैं। आगे की जो चीज होती है उसे कहते हैं एंड पॉइंट। तो ये तो है मेरा एंड पॉइंट, ये है मेरा पैरामीटर पाथ वेरिएबल, और ये है मेरा रूट। तो मैं केवल यहाँ रूट रख रहा हूं बार, आई एम जस्ट पुटिंग द रूट ऑफ इट, दैट मीन्स आई एम जस्ट पुटिंग दिस मच।
स्पेस जरूरी है. ओके, सो आई एम पुटिंग इट हियर. नाउ द चैलेंज इज हाउ विल आई ब्रिंग इट. मैं इसको यहाँ पे कैसे लेके आऊँ, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, स्प्रिंग में, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में जब आपको कोई वैल्यू आपके YAML फाइल या प्रॉपर्टी फाइल से पढ़नी है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल. आई विल से प्राइवेट string root or base URL. Okay, and on top of it I will write value. See, Spring is full of annotation. आपको कुछ भी करना है, कुछ ना कुछ annotation होगा उसका. All you need to do is to find that annotation. So I will say add that value, and inside this I will define the location of it. Okay, कैसे? मैं एक डॉलर साइन बनाऊंगा, डॉलर साइन, और उसमें कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज एंड ओपन करूंगा. Oops. And इसके अंदर I will write the location. The location of this is pet API dot URL. Remember to put dots. जब मैं ये जो YAML फॉर्मेट है, इसमें अगर आपको ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो कैसे करोगे? spring dot h2 dot console dot enable will give you true. ठीक है, यूजर नेम चाहिए, कैसे करूंगा? spring dot data source dot username. सेम केस हियर, pet API dot URL, तो मुझे ये मिलेगा. ओके, सो आई विल से pet API dot URL. दिस विल गिव मी, ये यहां से ऑटोमेटिकली वहां से वैल्यू फेच करेगा स्प्रिंग बोट, और वो बेस यूआरएल में सेव कर देगा. और ये बेस यूआरएल को मैं की वैल्यू को मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ लाइक दिस. ठीक है, आई कैन सी इट्स वर्किंग. सो आई कैन अगेन पुट अ डिबग पॉइंट हियर. डिबग पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ ताकि वो यहाँ रुक जाए. ओके, एंड आई विल ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस फ्रॉम हियर. एग्जीक्यूट, तो वहां पे रुकेगा कोड. ये रुक गया. तो यू सी बेस यूआरएल आ गया उठ के. ये देखो, ये वैल्यू है बेस यूआरएल की. ये कहाँ से आई है? मैंने तो यहाँ सेट नहीं की. कहाँ से आई है? application.yml से. किसने, कौन लेके आया है? स्प्रिंग बूट. क्यों लेके आया है? क्योंकि मैंने, बिकॉज आई हैव केप्ट इट लाइक दिस. मैंने उस एंटिटी को, इस एंटिटी, नॉट एंटिटी, आई हैव, ये जो अपना वेरिएबल है इसके ऊपर मैंने @value लिखा हुआ है. एंड @value को मैंने दिखा बताया हुआ है डॉलर and then the curly brackets and the reference from the YAML file in dot notation. मैंने कहा pet URL के अंदर, pet API के अंदर URL में जाओ, वहां से वैल्यू लेके आके इसमें सेव कर दो. This is what I'm saying when I say this. Okay, fine. Any questions so far? So I made my code better, right? मैंने इसको इंजेक्ट किया, मैंने URL को हार्ड कोडिंग हटा दी है. Okay, any questions so far? ओके, नाउ आई विल मेक दिस इवन बेटर. सो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा कि मैं, अगर मेरे पास कोई और क्लास बनानी पड़ती है, मुझे एक पेट सर्विस और बनानी पड़ती है, तो ये मुझे कोड वहां भी रिपीट करना पड़ेगा, राइट? एंड इन कोडिंग, इन वर्ल्ड ऑफ कोडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज don't repeat yourself. It's called a DRY principle, DRY, don't repeat yourself. It's said as, it's notated as like this, DRY, don't repeat yourself. मुझे अपने अपने कोड की डुप्लीकेसी नहीं चाहिए. अननेसरी एक ही चीज दो दो जगह नहीं लिखनी है. ओके, अब मैं, क्या हो रहा है, अगर मैं कल को एक क्लास और बनाता हूं, फॉर एग्जांपल वन फॉर डूइंग समथिंग एल्स, वहां पर भी मुझे फिर से यही लिखना पड़ेगा, राइट? दिस इज नॉट अ बैड थिंग, बट स्टिल डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं चीजों को, राइट? लेट मी डिलीट दिस, अदरवाइज. Okay, so there is again a better way of doing this. Instead of doing this here, REST template का जो मैंने टेम्पलेटिंग की है, there is a way to do it. मैं इसी, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था REST template का, मैं उस समय पर ही इसमें ये pet API URL को कॉन्फ़िगर कर सकता था, ताकि मुझे यहाँ ना लिखना पड़े. कैसे? The way is still the same. Okay, what I have to do is I have to go to here जहां मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और इस बार मैं ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ और तरह से बनाऊंगा. ओके, सो लेट मी शो यू हाउ. नाउ आई विल रिमूव दिस. आई विल से रेस्ट
REST template builder. Oops. 1 minute. Then I will say, oh sorry, new लगाना पड़ेगा. REST template builder. So this is class dot. Okay, and then here I'll say root URI. अब root URI कहाँ से आएगा मुझे? root URI तो it's still in here. इसको fetch करने का तरीका क्या है जो हमने देखा था अभी? Using this. So I will use copy this here and I can put directly here. Okay, and string base URL. So basically जो मैं यहाँ लिख रहा था here, यही सेम लाइन मैंने उसके आर्ग्यूमेंट में डाल दिया. This line I have cut here and I have pasted it here. Of course private नहीं जाएगा, base URL. Okay, then I put base URL here and I'll say build and then I will return this. इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये हुआ कि REST template तो अभी कौन बना रहा है? मैं ही बना रहा हूँ, यूजिंग न्यू कीवर्ड ही बना रहा हूँ, बट मैंने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया बनाते वक्त. तो बेस यूआरएल मैंने पहले ही डाल दिया उसमें. तो अब जब भी जिस जगह पे भी REST टेम्पलेट कॉल होगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ से लेके आएगा? हमेशा यहीं से लेके आएगा और उसमें ऑलरेडी बेस यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन है, तो मुझे बेस यूआरएल बार बार करने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू प्रूव. सो आई डोंट नीड टू गेट फॉर, अभी मुझे यहाँ डालने की जरूरत है ही नहीं. इससे ही काम होगा मेरा. वो ऑटोमेटिकली रूट यूआरएल मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया है, वो यहाँ से लेके आएगा. ओके, सो इफ आई रन दिस, and if I go and click on execute again, वो डेटा मेरे को यहाँ पे लाके दिया उसने. It's working. Okay, so see how there are so many ways of doing certain things and Spring Boot makes it very easy. So अभी मैं यहाँ पे आऊँगा pet store में. My code is very simple now. बेस यूआरएल नहीं है, मैं न्यू कीवर्ड नहीं कर रहा हूँ, बेस यूआरएल भी नहीं है, केवल 2 लाइन से काम हो रहा है मेरा. Fine. Okay, any questions here? So what did we learn? We learned 3 things. जो भी अभी मैंने ये एपिसोड किया इसमें 3 things learn किया. पहला, REST template. REST template को कैसे यूज करेंगे दूसरी API से डेटा फेच करने में. सेकंड, हमने क्या समझा कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है तो वो मैं उसको कैसे फेच करके लाऊंगा अपने कोड में यूजिंग @value. राइट. तीसरी चीज क्या देखी? जब भी कोई ऐसा बीन रिलेटेड एरर आ रहा है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आप इंजेक्ट करना चाहते हो, ऑटो वायर करना चाहते हो, ऑटो वायर का दूसरा नाम इंजेक्ट भी है. अगर आप इंजेक्ट या ऑटो वायर करना चाहते हो एंड उसका बीन अवेलेबल नहीं है, तो what you will do, you will create a class, create a configuration class, mark it as @configuration, create a method, mark it as the bean, और उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो विद वॉट एवर कॉन्फ़िगरेशन यू वांट एंड मेक श्योर यू रिटर्न इट. रिटर्न नहीं करोगे तो बीन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि बीन का मतलब क्या है? बीन का मतलब है एक ऑब्जेक्ट. तो आपका मेथड जिसको आपने @bean लिखा हुआ है वो कुछ रिटर्न करना चाहिए, वो कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए. जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो उस क्लास का कहीं पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आप मांगोगे स्प्रिंग से तो वो आपको देगा. तो मैंने रेस्टम्पलेट क्लास टाइप का यहाँ लिखा है ऑटो वायर, स्प्रिंग यहाँ से जाके लेके आएगा क्रिएट करके. ओके, सो फार सो गुड. ठीक है. सो हम वी आर ट्राइंग टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स, मोर कॉन्सेप्ट्स. स्प्रिंग बूट हैज लॉट ऑफ annotations, lot of things, lot of concepts. You don't have to worry about learning all of them. वो तो year by year, month by month, the more you practice, the more you work on it, the more you'll get it. बट जो स्टार्टिंग के जो बेसिक्स हैं वो तो हमें पता होना चाहिए. हम बेसिक्स पे ही अभी फोकस कर रहे हैं फॉर नाउ. फाइन. Okay, now let's move towards next concept, which I want to cover today itself, and that is actually called as testing. Okay,
नाउ मेरी एपीआई तो देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, एपीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं अपनी एपीआई रन करता हूँ, मेरी एपीआई रन होती है, सारे एंड पॉइंट चलते हैं। ऑफ कोर्स फ्यू कॉन्सेप्ट्स हियर एंड देयर इम्प्लीमेंटेड नहीं है, जो कि हम कर सकते हैं लेटर, बट फॉर नाउ माई एपीआई इन सम वे और अनदर इज वर्किंग। उसके सारे एंड पॉइंट चलते हैं, रन करते हो रन होता है, ओके। बट ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन और ये मेरे एपीआई चल रही कि नहीं चल रही, ये मुझे पता कैसे चलेगा? राइट, आई नीड टू टेस्ट इट, कि मेरा जो टेस्ट, अभी तो मैं टेस्ट मैनुअली करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ये खोलता हूँ स्वैगर, एंड यहाँ से करके गेट किया, पोर्ट किया, पुश किया, ये ऐसे करके मैं रन करके देख लेता हूँ, ओके। बट ये सही तरीका नहीं है। दिस इज मैनुअल टेस्टिंग जो मैं अपनी एपीआई की कर रहा हूँ। हाय अश्विनी, वांट टू आस्क समथिंग? ओके, सो दिस इज नॉट द एक्चुअल टेस्टिंग, दिस इज मैनुअल टेस्टिंग। पर मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस चीज को ऑटोमेट करना है, ओके। सो दैट जब भी मैं कुछ चेंज करूं, तो मैं अपने टेस्ट रन करके देखूं कि मेरे उस चेंज की वजह से कुछ पुराना तो नहीं फेल हो गया। टेस्टिंग का हमेशा यही लॉजिक होता है कि मैंने अगर एक नया, आज कल जाके मैंने एक नया कुछ चेंज किया, मैं जाके कहीं भी मैंने कुछ भी चेंज किया, तो मुझे जरूरी, ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे इस स्मॉल चेंज से कोई मेरे बाकी के फंक्शंस और मेथड्स तो नहीं इम्पैक्ट हो गए। हाउ वुड आई नो दैट? राइट, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, मुझे ये भी चेक करना है कि जब मैं यहाँ से मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ, तो एक, केवल एक पॉजिटिव केस ही चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गया, मैंने किया डिलीट, ओके। वो डिलीट होके इस लाइन पे आया और उसने डिलीट कर दिया। देन आई विल से हाँ, डिलीट ठीक काम कर रहा है। बट हो सकता है मैंने कुछ नेगेटिव केस नहीं लिए, तो ये लाइन पे कभी जा ही नहीं रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये लाइन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? अगर मैंने यहाँ कुछ फालतू का कोड लिखा हुआ है, तो वो लाइन में कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो मेरे कोड को कभी पता ही नहीं चलेगा कि, या किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे इस लाइन पे, यहाँ लाइन, ये लाइन ठीक चलती है कंडीशन की, पर ये लाइन ठीक नहीं चलती। तो मेरे ब्रांच लॉजिक दोनों टेस्ट होने चाहिए कि अगर यहाँ आए तो क्या होगा, यहाँ आए तो क्या होगा, ओके। और ये सारी चीज मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए टूल्स हैं, ओके। सो एक सिमिलर टूल और कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कोड कवरेज। द कोड कवरेज कॉन्सेप्ट सेज कि आपके पास इतने टेस्ट होने चाहिए, जब वो टेस्ट रन हो, तो इट शुड मेक श्योर कि उन टेस्ट रन होने की वजह से आपके सोर्स कोड की सारी लाइन एग्जीक्यूट हुई है, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक बार उस लाइन पे आपका पॉइंटर गया है, कोड का पॉइंटर उस लाइन पे गया है। तो आपकी जो टेस्ट होने चाहिए वो डिटरमाइन करते हैं कि आपके टेस्ट का कोड कवरेज क्या है। आपने कोई टेस्ट लिखा, तो उसका कोड कवरेज कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये डेफिनेशंस डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। इसके लिए टूल्स भी अवेलेबल है। दैट इज व्हाट बेसिकली वी आर ट्राइंग टू लुक एट नाउ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई भी दुनिया का सोर्स कोड नहीं होता है जिसके पास टेस्ट ना हो। तो अगर आप केवल सोर्स कोड लिख रहे हो, टेस्ट नहीं लिख रहे हो, यू आर ए वेरी बैड डेवलपर, एंड यू विल नॉट गेट जॉब एनीवे। व्हेनेवर यू गो टू इंटरव्यू, दे विल डेफिनेटली आस्क हाउ डू यू टेस्ट योर कोड। जब भी आप कोई अपना चीज, अपना सोर्स कोड लिखते हो, बनाते हो, यू ऑल्सो नीड टू टेस्ट दैट कोड देन एंड देयर एट द सेम प्लेस। एंड इसीलिए फिर नोटिस, आपके पास हमेशा हर इस मेवन के प्रोजेक्ट में एक मेन जावा होता है और एक टेस्ट जावा भी होता है। वहां पे एक सैंपल टेस्ट भी आपके लिए बनाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्प्रिंग बूट टेस्ट, ओके। नाउ टेस्ट की जब हम बात करते हैं, राइट, टेस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज यूनिट टेस्ट, second is integration test. When you see something like this spring boot test, they usually mean integration test, okay। जब हम unit test लिखेंगे, then we actually never use spring boot test। अब spring boot test क्या करता है वो हम बाद में समझेंगे, what spring boot test does। as name suggests, just to summarize, spring boot, when you write spring boot test on top of a class or top of a test class, पूरा आपका जो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है, पूरा स्प्रिंग एप्लीकेशन है, वो अपने आप रन होने लगती है बिफोर द टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड, ओके। बट हम अभी वो नहीं कर रहे हैं, हम अभी कुछ और कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू राइट यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में स्प्रिंग का कोई काम नहीं है। यूनिट टेस्ट में इतना ही करना होता है कि मेरी जो सारी क्लास फाइल्स हैं, आई नीड टू टेस्ट द मेथड्स प्रेजेंट इन दोस क्लास फाइल्स, ओके। फॉर एग्जांपल मेरी ये क्लास फाइल है, तो मुझे ये चेक करना है कि जब मैं अपने टेस्ट लिखूं, तो जो कोड है वो, जो मेरा कोड है वो
हर लाइन पे जाना चाहिए। जब वो टेस्ट रन हो तो हर लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए एटलीस्ट वंस। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फिर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऑल दैट शुड हैपन। Okay, so this is basically is the goal of unit test, writing unit test. एंड यूनिट टेस्ट जब आप रन करते हो तो उससे पता चलता है कि कोड कवरेज कितना है, आपके टेस्ट ने कितना परसेंट ऑफ कोड कवर किया है। ओके, एंड टू कैलकुलेट कोड कवरेज देयर इज अ tool. So first we need to know what that tool is. That tool is called as, it has a funny name, it's called as Jacoco. Jacoco, Jacoco. So Jacoco is a tool, a plugin, a Maven plugin, which calculates code coverage. So let's see how that looks like. Let me just copy it from some existing place. I'll copy the plugin and I will paste it in the pom.xml. तो मैं यहाँ पे आके, ये build के अंदर है plugins, plugins के अंदर है multiple plugin, तो मैं इस plugin के नीचे इस plugin को डाल दूंगा। इस plugin का नाम है Jacoco Maven plugin एक्सेट्रा एक्सेट्रा से कुछ सेट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसमें कुछ और भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको सिंपल रखते हैं। we'll keep it simple. Okay, fine. Now what we do is Jacoco आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कितने टेस्ट हैं यहाँ पे? यहाँ मेरे पास एक भी टेस्ट नहीं है, एक टेस्ट बस ऐसा लिखा हुआ है एक टेस्ट करके, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी मेरे पास एक भी टेस्ट नहीं है। देन आई गो टू माई टर्मिनल एंड आई विल राइट मेवन क्लीन वेरीफाई। जब मैं मेवन क्लीन वेरीफाई करता हूं तो मेरे जो भी टेस्ट होते हैं यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रन होते हैं। ये मेवन की फंक्शनैलिटी है। जो भी कोई टेस्ट, उसको ऐसा कोई भी क्लास मिलेगी, ऐसा मेथड मिलेगा जिसके अंदर टेस्ट लिखा होगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी टेस्ट रन कितने दिखा रहा है? 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहां पे। इट रैन नथिंग। ओके, जब टेस्ट रन होते हैं और आपके फॉर्म फाइल में जकोको प्लगइन भी होता है, ये प्लगइन भी आपने वहां डाला हुआ है फॉर एग्जांपल, व्हेन दैट हैपेंस आपका ऑटोमेटिकली कोड कवरेज कैलकुलेशन करता है ये सॉफ्टवेयर विच इज जकोको। और उसकी रिपोर्ट कहाँ डालता है? अंडर अ फोल्डर, टारगेट के अंदर साइट नाम का फोल्डर बनाता है, उसके अंदर जकोको नाम का फोल्डर बनाता है, वहां पे कुछ फाइल्स रख देता है। दिस इज योर index.html, इसको आपको खोलना है। सो इफ आई गो हियर, आई ओपन विथ क्रोम और मैं खोल के इधर लेके आता हूँ उसको, ये जकोको हो गया। राइट नाउ यू सी द कोड कवरेज इज कमिंग एज 0। तो ये कह रहा है आपके पूरे, इस पूरी लाइन, पूरे आपके जो सोर्स कोड है उसमें 369 लाइंस हैं। ओके, और आपके टेस्ट ने एक भी लाइन कवर नहीं करी है। मतलब आपका जो भी टेस्ट है उसने एक भी लाइन पे गया ही नहीं। वो बता रहा है कितनी लाइंस हैं, कितने मेथड्स हैं, कितनी क्लासेस हैं, सब बता रहा है। 7 क्लासेस हैं, 51 मेथड्स हैं, 58 लाइंस हैं। ओके, और सब मिला के, टोटल मिला के वो कह रहा है 0% कवरेज। मिस्ड टोटल इंस्ट्रक्शंस 369, इट्स 0%। सो मुझे क्या, मेरा गोल ये है जब मैं अपने सॉफ्टवेयर और एपीआई डेवलप करता हूँ, so my goal is that I need to increase this coverage. Good number is 80%। 80 to 90% ये होना चाहिए आपके सारे सोर्स कोड के लिए। ओके, और हमारा अभी 0%, मीन हमें अब टेस्ट लिखने की जरूरत है ताकि मुझे बार बार जाके मैनुअल टेस्टिंग ना करनी पड़े। जब मैं रन करूँ तो मेरे टेस्ट ऑटोमेटिकली सब रन करके मुझे रिपोर्ट दे दें कि हाँ ये पास हो गया है, ये फेल हो गया है। तो मुझे बार बार जाके वहां से टेस्ट करने की जरूरत, मैं बार बार यहाँ के रन करके टेस्ट करता हूँ ना, चल रहा है नहीं चल रहा, वो नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहीं से पता चल जाएगा। पर वो इंटीग्रेशन टेस्ट का पार्ट है, अभी हम फोकस कर रहे हैं यूनिट टेस्ट। ओके, सो लेट्स सी इफ आई गो हियर टू माय, लेट्स से मेरे पास कितनी क्लास है, 1 2 3 5 6 7 क्लासेस है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चूज करना पड़ेगा मुझे किस क्लास का पहले टेस्ट लिखना है। तो मैं चूज कर रहा हूँ, आई कैन चूज कंट्रोलर ऑल्सो, इन कंट्रोल का पहले टेस्टिंग करूंगा, या फिर मैं कहूंगा मैं सीधे सीधे एम्प्लॉय, क्योंकि कंट्रोलर तो एसेंशियली सर्विसेज को ही कॉल करता है, राइट। सो आई एम थिंकिंग आई विल जस्ट फर्स्ट फोकस ऑन द सर्विस पार्ट, कि मैं सर्विस के टेस्ट पहले लिखूंगा। ओके, so what I will do, I will go to this class and then I will click on control N, और आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे जा सकते हो। कहाँ से जाते थे यहाँ पे, रिफैक्टर,
Why I'm not seeing that option? Inspect code, clean up. I think it's generify add to vectors browse type format. Okay, simple as you press Control N, you will see something like this, generate. Okay, and then from here you click on test. फिर ऑप्शन पूछेगा कहाँ करना है, तो आप सारे सारे सेलेक्ट कर दो कि आई वांट टू राइट टेस्ट फॉर ऑल द मेथड्स। हर मेथड के लिए अलग टेस्ट लिखने को कह रहा है वो, आपके पास इस क्लास में इतने मेथड्स हैं, वो कह रहा है आपको इतने टेस्ट लिखने चाहिए। ओके, मैं क्लिक ऑन ओके, मेरे टेस्ट मेथड्स क्रिएट हो गए। केवल टेस्ट मेथड्स क्रिएट हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आई नीड डू मोर, कि मैंने केवल टेस्ट मेथड जनरेट किया। अब इन मेथड्स के अंदर मैं बेसिकली मेरा टेस्ट कोड लिखूंगा। ओके, एंड फिर हम जब टेस्ट कोड लिखेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा हमारा कोड कवरेज कितना कितना हो गया। ओके, लेट्स सी हाउ। मुझे करना है क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय सर्विस टेस्ट को मैं लिख रहा हूँ, राइट। एम्प्लॉय सर्विस टेस्ट कौन सा है? एम्प्लॉय सर्विस है मेरा ये। तो मुझे इस मेथड को चेक करना है। इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस मेथड को कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं स्प्रिंग बूट यूज कर रहा होता तो मैं सीधे ऑटो वायर करता है इसको, बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज आई एम राइटिंग माई टेस्ट। जब आप अपने यूनिट टेस्ट लिखते हो तो वहां आप स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट्स को नहीं यूज करते, आप डायरेक्टली क्लास और मेथड लेवल पे टेस्टिंग टेस्ट लिखते हो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ ऐसा, मैं लिखूंगा एम्प्लॉय सर्विस, और मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ एम्प्लॉय एम्प्लॉय सर्विस एम्प्लॉय सर्विस। ओके, देन एम्प्लॉय सर्विस के मेथड को मुझे कॉल करना है विच इज क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय। ओके, इसको मुझे क्या पास करना है? एम्प्लॉय पास करना है। तो मुझे एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। से एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट बिल्डर डॉट लेट से मैं कहूंगा विद नेम आकाश डॉट बिल्ड। फाइन, तो अब मैं इसको यहाँ पे पास कर सकता हूँ, आई कैन पास इट। ओके, सो नाउ मेरा मेथड कंप्लीट हो गया। अभी मैं यहाँ पे कुछ असर्शन नहीं डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय में जाऊंगा, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है मुझे, बट आई कैन रिटर्न इट। लेट मी रिटर्न इट। आई विल से एम्प्लॉय और सिंपल रिटर्न करता हूँ, रिटर्न, एंड दिस विल रिटर्न मी एम्प्लॉय। रिटर्न, फाइन। सो अब ये जब भी मैं मेथड कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा, मेथड कॉल करूंगा, so what will happen is this will return me an employee, correct? So I'll say employee returned, and then I can put an assertion. So I'll say assert. Now what is assertion? Assertion हमेशा यूज होता है वर्सेस एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड जब भी आप कुछ टेस्ट करते हो, राइट, टेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है असर्शन। जब भी आप कुछ टेस्ट लिखते हो, कोई भी जगह टेस्ट लिखना चाहते हो, उसमें आप हमेशा यही चेक करते हो, राइट, कि मैं ये किया, मैंने ये किया, एंड देन चेक करो कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही एक्चुअल है कि नहीं। दैट इज व्हाट assertion is, correct? This is what exactly I am trying to do. So I am saying assert, मुझे जुपिटर की यूज करता हूं, assertions dot assert that, oh that's assert equals employee, ये मेरा expected था, and return ये हुआ। So I'll say assert that expected equal to returned। फाइन, तो मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा, देखें क्या होता है। इफ आई गो एंड रन दिस, सब पास हो गए, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो पास होने था। जो मेन जो लिखा मैंने वो फेल हो गया। अब देखो क्या फेल हुआ, नल पॉइंट एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक बिकॉज दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस इज नल। अब वो कह रहा है कि जो आपकी सर्विस है वो नल है।
ऑफ कोर्स नल है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो मैंने न्यू कीवर्ड यूज ही नहीं किया है क्या? नहीं किया। इसको मैं वहां कैसे यूज कर रहा था कंट्रोलर में? वहां तो मैं स्प्रिंग को यूज कर रहा था, स्प्रिंग बूट यूज हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया था ऑटो वायर, तो अपने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था। पर यहाँ मैं टेस्ट की, जब मैं टेस्ट कर रन कर रहा हूँ तो कोई स्प्रिंग बूट वगैरह कुछ नहीं है, केवल प्लेन क्लास है, प्लेन ऑब्जेक्ट है, क्लास का आपने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया और रन कर दिया, फाइन। अब इसमें चैलेंज क्या है कि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्प्रिंग नहीं बना रहा, मैं खुद बना सकता हूँ। आई विल यूज न्यू कीवर्ड एम्प्लॉय सर्विस, फाइन। एम्प्लॉय सर्विस बनाया। अब एम्प्लॉय सर्विस जब मैं रन करूंगा तो उसके अंदर एक और चीज है, एम्प्लॉय रेपोजिटरी, वो हम देखिए कैसे करेंगे। अब मैं इसको वापस रन करता हूँ, तो अब एरर कुछ और आएगा। अब एरर दिस डॉट एम्प्लॉय रेपोजिटरी इज नल। वो कह रहा है कि इसके अंदर जो एम्प्लॉय रेपोजिटरी है वो नल है। ऑफ कोर्स नल है, क्योंकि ये भी नहीं बनाया मैंने, ये भी स्प्रिंग बना रहा था मेरे लिए। तो अब मैं क्या करूं, राइट? अब मैं यहाँ पे तो बना नहीं सकता कि न्यू करके, कि मैं न्यू कीवर्ड कर दूं और उसको रन कर दूं, फाइन, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मुझे दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो मुझे एक एम्प्लॉय जो सर्विस है, आई नीड टू फाइंड अ वे टू पास ऑन, सॉरी, टू पास ऑन माय एम्प्लॉय रेपोजिटरी ऑब्जेक्ट हियर। एम्प्लॉय रेपोजिटरी ऑब्जेक्ट है, आई वांट टू पास दिस। सो उसके लिए मुझे मेरी डिजाइन चेंज करनी पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, I should put a constructor here. I'll put a constructor, something like this. And ये auto wire ना करके, I don't want to auto wire this. I want to auto wire it on constructor. Okay, now what is happening here? Employee service बनाया, employee service बना के I am passing on the service, the object of employee service directly to the service here. कि जब भी एम्प्लॉय सर्विस को एम्प्लॉय रिपोजिटरी की जरूरत पड़ेगी तो वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट होना चाहिए, ना कि फील्ड के फील्ड पे। सो जो स्प्रिंग बूट का जो ऑटो वायर का कॉन्सेप्ट है वो दो जगह लगा सकते हैं, एक तो मैं फील्ड पे लगा सकता हूँ या फिर मैं कंस्ट्रक्टर पे लगा सकता हूँ। तो आई हैव चोजन दिस ऑन द कंस्ट्रक्टर। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, व्हेन आई एम हियर आई हैव एन ऑप्शन टू पास दिस एम्प्लॉय रिपोजिटरी नाउ। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी नाम का जो ऑब्जेक्ट है, which is this one, I can pass it here. Okay, fine, run it again. Problem is still not solved because अभी भी वो null ही है, employee repository is still null, right? So अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मैं इसका भी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। When I try to create an object for this, the problem comes. What is the problem now? Because employee repository is a interface. अब मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। Okay, so now comes the concept of mocking. So let me explain you what mocking is और हमें क्यों करना होता है। अब जब मैं स्प्रिंग यूज कर रहा था तो मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे, रेडीली अवेलेबल थे, पर अब नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ पर कुछ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वर मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्प्रिंग बूट एपीआई देमसेल्फ। तो मुझे नहीं करना था वहां पे। पर अब मैं जब टेस्ट लिख रहा हूँ तो अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं स्प्रिंग बूट यूज नहीं कर रहा। And since I'm not using Spring Boot, how will I create the object now? So when you write your test and you want to test a specific service or a specific class, and if that class has dependency, what is the dependency of this class? Employee service class dependency क्या है? Employee repository object, this class. क्योंकि this class is dependent on this class or this object. So when this happens, then you can mock. The word is called as mock. You can mock that object. आप ऐसा कुछ मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करोगे ताकि आपके टेस्ट को पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है। your test will never know that this object is not there because I will mock it. How to achieve that mock? There is a library called as Mockito. So Mockito is a library which also comes from Spring Boot, and let's see how we do it now. So what I do is, सबसे पहले यहाँ पे मैं extend with नाम का एक JUnit का annotation यूज करूंगा। I'll put it here, then I'll say mock Mockito extension.
डॉट क्लास, सबसे पहले ये लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा सबसे ऑब्जेक्ट जो है जिसको मुझे मॉक करना है कौन सा है, ये, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मॉक ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको क्रिएट नहीं कर सकता, आई डोंट हैव द मैकेनिज्म टू क्रिएट इट। सो आई विल से @mock ऑन टॉप ऑफ इट। ओके, एंड देन ये ऑब्जेक्ट मुझे इंजेक्ट करना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। सो आई विल सिंपली से अच्छा, instead of doing that I could also do directly here, so instead of doing this also should work। मैंने मॉक कर दिया, मॉक को मैं न्यू कीवर्ड करके यहाँ कर दिया, फाइन। बट आई कैन ऑल्सो डू दिस where I don't have to write this at all, and I will simply write @inject mocks। okay, so I have one mock here and I am saying जो भी mock यहाँ बनाया है उसको inject कर दो इस वाले में। So inject mocks, what it does, it creates a new instance and inject the existing mocks directly here। okay, now if I run this again, let's see, ये नल वाले एरर तो नहीं आने चाहिए। अच्छा, अब एरर क्या आ रहा है, अब देखो नल वाले एरर तो आ नहीं रहा, एरर कुछ और आ रहा है। अब वो कह रहा है कि उसने सब कर लिया ये, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है और जो एक्चुअल है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। एक्सपेक्टेड क्या है, मैंने ये भेजा था एक्सपेक्टेड में ये, और रिटर्न होके क्या आया यहाँ से, नल। नाउ रिटर्न नल क्यों आया, क्योंकि जब मैं यहाँ गया तो यहाँ पे उसने कहा सेव, एम्प्लॉय रिपोजिटरी नाम का ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी है, ऐसा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एम्प्लॉय रिपोजिटरी इज अ मॉक, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, राइट, ये मॉक ऑब्जेक्ट है। जब इस मॉक ऑब्जेक्ट पे आप मेथड अप्लाई कर रहे हो विच इज सेव, ऑफ कोर्स कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। सेव एक्चुअली में सेव कुछ कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि आप मॉक ऑब्जेक्ट पे सेव लगा रहे हो। सेव ने रिटर्न कर दिया नल, रिटर्न हो गया नल, विच इज नॉट गुड थिंग, राइट। सो जब आप Mockito यूज करते हो, you also have another option। The another option is you can define what that mock method would return or should return। okay, so मैं फिर से यहाँ पे मॉक कर रहा हूँ। अब मैं क्या मॉक करूंगा, मैं जो सेव मेथड है इसका क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको क्या रिटर्न करना चाहिए वो डिफाइन करूंगा। ठीक, हाउ, आई विल से Mockito डॉट व्हेन, मैं Mockito को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कब, when employee repository object, जो यहाँ पे मैंने मॉक किया हुआ है, जो मैंने यहाँ मॉक किया हुआ है, employee repository object dot save is called, okay, with any employee dot class, okay, any का static method import करेंगे, import, what happened, oh sorry, not this, this was supposed to be Mockito, okay। when Mockito.when employee repository जब save method कॉल होगा, उसमें आर्ग्यूमेंट आप कोई भी एम्प्लॉय क्लास का कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे, ओके, then returns sorry, RUTURNS first argument। Sometimes you have to remember and learn what is to be written there, okay। These are natural to me because I have done it many times। You will find it a bit confusing in the beginning कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, वहाँ क्या लिख रहा हूँ, but the concept is what you need to understand now। मैं कह रहा हूँ Mockito को कि जब आप कोई mock object है, जब उस mock object आपने बनाया है, उस mock object पे आप जब save नाम का method कॉल करेंगे और जब आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी क्लास एम्प्लॉय क्लास होगा, तो रिटर्न करो जो भेजा है वही, रिटर्न्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो जो भेजा था उसको वही के वही रिटर्न कर दो, ये मैं उसको कह रहा हूँ। तो अब क्या होगा, आफ्टर दिस स्टेटमेंट व्हेन दिस मेथड इज कॉल्ड, यहाँ जाएगा एम्प्लॉय रेपोजिटरी जो कि मॉक ऑब्जेक्ट है, इस पे सेव मेथड कॉल होगा विद एम्प्लॉय डॉट क्लास, ये रिटर्न क्या कर देगा, असली में तो यहाँ जाएगा नहीं पर मॉक, चूंकि ये मॉक है तो वो रिटर्न कर देगा ये चीज, उसी का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो भेजा था वही रिटर्न कर देगा और यहाँ वैलिडेशन पास हो जाएगा, ओके।
अब यहाँ आप बोलोगे यहाँ पे टेस्ट क्या कर रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं क्या करना है, खुद ही टेस्ट भी कर ले रहे हैं, राइट? दैट इज द गोल ऑफ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में हम फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं करते एग्जैक्टली है, वो हम इंटीग्रेशन टेस्ट में करते हैं। यूनिट टेस्ट में हम केवल इतना ही करते हैं कि मेरी सारी लाइन कैसे भी करके ट्रावर्स हो जाए, मेरा टेस्ट कोड उस लाइन पे चला जाए कैसे भी करके। उसके लिए हम लोग ये मॉक वगैरह पूरा मैकेनिज्म यूज करते हैं। सो इफ आई रन दिस नाउ, इफ आई रन दिस टेस्ट नाउ, it's passed, test is passed. Okay, now let's see, previously if you have noticed मेरा टेस्ट कवरेज 0% आ रहा था, अब देखते हैं कितना आ रहा है। So, अब मैं कैसे चेक करूंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा, आई विल सिंपली से maven clean verify। Okay, let's go here, refresh it, you see the test code coverage improved to 19% now। So अब 90% मतलब ये है, वो कह रहा है तुम्हारे पूरे कोड में 373 लाइंस थी, उनमें से तुमने 71 लाइंस कवर कर ली है, 302 अभी भी बची है। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, अब ये इफ आई गो इनसाइड दिस, इट विल टेल मी कौन सा क्लास ज्यादा हुई है। तो यहाँ मुझे बता रहा है 21% एम्प्लॉय सर्विस क्लास कवर हुई है। आई गो इनसाइड दिस फर्दर, वो सारे मेथड्स कितने कितने कवर हुआ बता रहा है। क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय कवर हुआ है 100%। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। सो ये जो पूरा गोल है इस टेस्टिंग का, वो यही है कि आपका जो कोड कवरेज है वो 100% तो खैर बहुत मुश्किल अचीव होता है, पर एटलीस्ट 80 to 90% आपका कोड कवरेज होना चाहिए, ताकि आप हमेशा अश्योर रहो कि मेरा कोड हमेशा चलता है, और आपका टेस्ट जो है ऑटोमेटिकली विल गेट एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम यू रन योर और डिप्लॉय योर एप्लीकेशन। सो अभी मैंने केवल एक ही टेस्ट लिखा है, ये हमें सारे टेस्ट लिखने हैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट देम, बट आई वुड लाइक यू गाइस टू राइट योर सेल्फ। सो आप पहले ये लाइन लिखो, फिर मैं सारे टेस्ट लिख के आपको भेजूंगा। आई विल सेंड दिस इन द रेपोजिटरी, जो हमारे पास रेपोजिटरी है, राइट, जहां मैं सारा कोड रखता हूँ, which is let me show you, our whole source code is present here। okay, you can find that, ये जो भी मैं कर रहा हूँ you will find that in the master after some time। okay, और वहां पे मैं आपको सोर्स कोड ये वाला भी मिल जाएगा, इसका भी, और सारे टेस्ट में लिखूंगा सो दैट यू नो, एंड आपको भी सारे टेस्ट खुद से लिखने हैं। okay, now let me just quickly summarize what we learned today। we learned 4 things। first thing, टेस्ट टेम्पलेट, एक एपीआई से दूसरे एपीआई कैसे कॉल करते हैं। सेकंड थिंग, वी लर्न कि कोई वैल्यूज अगर मुझे रखना है वहां पे एप्लीकेशन और YAML में, वहां से कैसे रीड करूंगा। थर्ड थिंग, कि अगर मेरी बीन नहीं मिल रहा है, अगर मुझे एरर आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका बीन बनाने के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखूंगा, उसके अंदर मेथड डालूंगा, उसके ऊपर @bean लिखूंगा ताकि मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाए। एंड फोर्थ थिंग, वी लर्न अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, कि मुझे यूनिट टेस्ट कैसे लिखना है। यूनिट टेस्ट टॉपिक में हमने वी लर्न 3 थिंग्स। जकोको प्लगइन, पहले आपको जकोको प्लगइन डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आपका कोड कवरेज जीरो होगा। जब आप मेवन क्लीन वेरीफाई करोगे तो आपका कोड कवरेज जीरो आएगा। कहाँ दिखाता है, टारगेट के अंदर। and then you will go to then you create a test, then you will use Mockito to write mocks and inject mocks, and then you can write Mockito rules or Mockito condition for a specific mock object, and then you will write assertions to validate pass है कि fail, sorry, दोनों match हो रहे हैं कि नहीं। Once you do that, then you can run your Maven Clean Verify again, and you can witness the code coverage has increased. And the goal is your code coverage should be at least more than 80%, around 80 to 90%. Okay. Any questions so far? So that is all I wanted to cover today, guys. I will not talk about any more topics. I think we have covered enough for today. You need to practice all that. And from next time, we will have some more topics. That will be the last class for this API. After this, we will create a new API from scratch again. वो patient API, doctor API वगैरह हम create करेंगे. So next class will be about some topics which is pending from Spring Boot, and then very important topic called as Docker. So next class we will talk about Docker, and we'll see how we can Dockerize this whole API into a Docker image, and हम इसको local पे Docker image को कैसे run करते हैं. That is what you will see in the next class. So far, any question?
So I'll take a pause. I'll take 2 minutes break. Take a pause for 2 minutes and then leave the floor open for questions. So for reading something, some documents are there, which is Sorry. documents for this all the functions. See, documents in the sense you want to know ये mock क्या होता है ये? This is what you're saying? All the Yeah. So it just is. one. Yeah. So internet is full of documentation. All you need to do is try doing it, and the moment you get something, Google it. Okay. Okay. अब मुझे, for example, मुझे नहीं पता ये क्या inject mocks. So I'll go here, Google inject mocks. Inject mocks. Okay, so it will give me a lot of links. I'll go here. It will tell me क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह वगैरह. Fine. So see, the problem is, lot of concepts are there. It will lot of files and pages will be there. I don't want you guys to be confused about it. So मैं आपको एक path दे रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ आप ये path follow करो. तो आप इस बात को एग्जैक्टली फॉलो करो, एंड जब वो फॉलो करते करते मैंने आपको चीजें बता दी हैं, कुछ चीजें आपको फर्दर रीडिंग की जरूरत है, देन यू कैन गो टू इंटरनेट एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट दोस थिंग्स. ओके, बट डोंट गेट टू कंफ्यूज अबाउट ओ माय गॉड कितना सारा है, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे. डोंट वरी टू मच अबाउट, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, आपको सारे नहीं सीखने हैं, आपको लिमिटेड ही सीखना है, बट आपको बेसिक चीजें करते आनी चाहिए. तो जो हम कर रहे हैं बेसिक कर रहे हैं. और मैं आपको कुछ लिंक्स और भी भेजूंगा. मैं भी नहीं चाहता कि जब आप सर्च करो तो आपको आपको कि ओ ये तो कुछ इतने सारे लिंक कौन सा खोलूं. ओके, पर ये कभी आपको करना भी पड़ेगा. आपने एक खोला, आपको समझ में आया, ठीक है, एक आर्टिकल पढ़ा, समझ में आया, ओके, थोड़ा समझ में आया, ठीक है, लेट्स रीड अनदर वन. ये नहीं समझ में आया, चलो लेट्स रीड समथिंग एल्स. आपको जैसे मॉकिटो के बारे में पढ़ना है, आप सर्च करो मॉकिटो, and then lot of sites, tutorial points, Beldung is a very famous website, full of information. रीड करने को कोई लिमिट नहीं है, मतलब इट्स लिमिटलेस. ओके फाइन, बट स्टिल मैं कुछ चेरी पिक करके आपको भेज दूंगा लिंक्स, तो दैट यू कैन रीड. फाइन. Okay, cool. Any more questions, guys? Okay, if no, then we'll call the class off for today. मैं recording भेज दूंगा, and then I'll send you some links and the root and the GitHub repository for this. आपसे what I expect from you is till next class you should be ready with all that, with more tests. ये टेस्ट भी आपको लिखने हैं. इसका मैं रेफरेंस के लिए मैं भी लिख के आपको भेज दूंगा, बट यू ट्राई टू स्टिमुलेट इट. एग्जैक्टली जो मैंने लिखा है वैसे आप करके देख सकते हो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे. शुरू में एकदम से बहुत क्लैरिटी से नहीं समझ में आता है मॉकिटो का कॉन्सेप्ट, कि मैं मॉक भी कर रहा हूँ, फिर मैं कॉल भी कर रहा हूँ, जो मैंने लिखा वही कॉल भी हो रहा है, तो क्या हो, व्हाट आई एम रियली अचीविंग इन द डे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ फंक्शनैलिटी विच यू आर टेस्टिंग, दिस इज जस्ट टू सी आपका जो कोड है वो उस लाइन तक जा रहा है कि नहीं. उस लाइन तक पहुंचाने के लिए आपको क्या क्या करना है, आप सब करते हो मॉकिटो के थ्रू. Okay, fine. That's it then, guys. Thank you very much for joining. See you next time.